السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں غزل اشرف اوان۔ دعا ہے اے خالق کی دو جہاں ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبر دیں آپ کو چونیا کے علاقے تھانہ کنگن پور میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئی۔ قصور عدالت پیشی پر جانے والے 3 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ قاضی احمد میں بھی نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ درینہ دشمنی کا خوفناک شاخسانہ، عدم برداشت نے گھر اجاڑ کر رکھ دیے۔ چونیا میں تھانہ کنگن پور کی حدود میں 2 گروپوں میں تصادم ہوا، اندھا دھند گولیاں چلی، فائرنگ کی زد میں آ کر 3 افراد دم توڑ گئے جبکہ 2 راہگیر زخمی ہو گئے۔ قتل ہونے والے افراد قصور عدالت پیشی جا رہے تھے، راستے میں گھات لگائے افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ تھانہ کنگن پور پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ادھر آئی جی پنجاب نے 3 افراد کے ناحق قتل کا نوٹس لے لیا اور آر پی او شیخوپورہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے ملزمان کی جلد گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی انتظامیہ نے ہاسٹل میں مقیم طلبہ کو نکال دیا گیا۔ انتظامیہ نے طلبہ کے تمام سامان کمروں سے باہر پھینک دیے۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے 10 طلبہ کو دھر لیا۔ خیرپور میں شاہ عبداللطیف یونیورسٹی انتظامیہ نے رات گئے ہاسٹل میں کارروائی کی۔ سچل سرمست جی ایم حامی سمیت دیگر ہاسٹل سے طلبہ کو نکال دیا گیا، جس کے خلاف طلبہ نے احتجاج کیا۔ پولیس نے احتجاج کرنے والے 10 طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے فیسوں میں اضافہ کیا اور بروقت ادائیگی نہ کرنے پر ہاسٹل سے نکال دیا، جبکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے موقف دیا کہ بغیر الاٹمنٹ کے رہائشی طلبہ کو نکالا گیا۔ تشدد اور گرفتاری پولیس کا معاملہ ہے۔ محکمہ ریلوے انتظامیہ کی غفلت، ریلوے اسٹیشن مبارک پور بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا۔ سہولیات کا فقدان، مسافر پریشان، کوئی پرسان حال نہیں۔ یاسر ناج کی رپورٹ دیکھیے۔ مبارک پور اسٹیشن پر 3 پیسنجر ٹرین کا سٹاپ مقرر ہے مگر سہولتیں صفر۔ ہار آنے والی حکومت نے اسٹیشن کی مرمت کے لیے سبز باغات دکھائے مگر سب خواب نکلے۔ مبارک پور ریلوے اسٹیشن کلاس 2 کے درجے میں ہونے کے باوجود ریلوے اسٹیشن پر نہ کوئی صفائی کا انتظام ہے اور نہ ہی صاف پانی پینے کا۔ انتظار گاہ میں بیٹھنے تک ایک کمرہ میسر نہیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بہاولدین زکریہ ایکسپریس کا بکنگ نمبر ڈبہ ریلوے اسٹیشن سے کافی پیچھے ہے، جہاں پر لائٹ کی کوئی سہولت موجود نہیں۔ اس موقع پر شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فرید کھڑ دیے، ہدارہ کھڑ دیے، ذکریہ کھڑ دیے، اتا کوئی بندوبست کا نہیں، سارا ٹوٹے پھوٹے پلیٹ فارم ٹوٹا پھوٹا پہ سارا، اتا نہ واش روم ہے نہ ویٹنگ روم ہے۔ بیٹھنے کے لیے بینچ بھی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں۔ مسافروں کے لیے اسٹیشن پر کوئی کینٹین موجود نہیں۔ مسافروں نے ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مبارک پور ریلوے اسٹیشن پر تمام تر سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ مسافروں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ یاسر نائچ، سچ نیوز، مبارک پور۔ قیمت پوری 1 لیٹر کی پیٹرول 700 ملی لیٹر گاڑی موٹر سائیکل صارفین کو لوٹنے کا نیا انکشاف سامنے آ گیا۔ پیٹرول ڈالنے والی مشینوں میں مقدار کو ریموٹ کنٹرول سے کم کیا جانے لگا۔ پیٹرول پمپ مالکان کی جانب سے نئی جال سازی سامنے آ گئی۔ آپ پیٹرول پمپ پر جائیں، پیٹرول بھروانے کے لیے رکیں، فلر بوائے وال آپ کی گاڑی موٹر سائیکل میں لگائے گا، پیٹرول میٹر پر پورا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں 1 لیٹر کی جگہ 700 ملی لیٹر ہوگا۔ پیٹرول ڈالنے والی مشینوں میں مقدار کو ریموٹ کنٹرول سے کم کیا جانے لگا۔ چیکنگ آفیسر کے آنے پر سیل مین جیب میں رکھے ریموٹ سے تیل کی مقدار پوری کر دیتا ہے اور پھر ریموٹ سے مشین کی مقدار 1 لیٹر کے بجائے 700 ملی لیٹر کی دیتا ہے۔ پنجاب کے علاقے شرکپور میں علاقہ مجسٹریٹ نے اطلاع پر چھاپہ مار کر 2 نمبری بے نقاب کر دی۔ سناوا میں سخت گزیدگی کے واقعات بڑھنے لگے۔ سرکاری اسپتال میں ویکسین نایاب ہو گئی۔ شہری ویکسین نہ ہونے سے شدید پریشان ہے۔ رپورٹ منیر حسین کی دیکھیے۔ سیناوا اور گردنواں میں کتے کاٹنے کے واقعات کے اضافے کے ساتھ ہی RHC ہسپتال سیناوا میں کتے کاٹنے کے بعد لگنے والی ویکسین نایاب ہو گئی۔ حال ہی میں کتے کاٹنے کے 2 مختلف واقعات میں 2 بچے شدید زخمی ہو گئے، لیکن ہسپتال پہنچنے پر ویکسین نہ ہونے پر شدید پریشان رہے۔ کتے نے کاٹ لیا، ہم در بدر پھر رہے ہیں کہ ہمیں ویکسین نہیں مل رہی، ہم پریشان ہیں۔ ہم ہسپتال سیناوا میں بھی گئے تھے، وہاں بھی ویکسین نہیں ملی۔ دوسری طرف ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویکسین کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے ضلع بھر میں موجود نہیں، جلد ہی آ جائے گی۔ میں شارٹ ہو چکی ہے جو یہ ہے نا اینٹی ریبیز ویکسین، تو ہمارے ہم نے جو لڑکے بھیجے ہیں کلرک وغیرہ، وہ انہوں نے پتہ کیا ڈسٹرکٹ جو اتھارٹی سے، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ کچھ دنوں تک آ جائے گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہسپتال کے دھکے کھا کر واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن ویکسین نہیں ملتی۔ منیر حسین، سچ نیوز، سیناوا۔
बूरेवाला में वापडा निजकारी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन ने मुकम्मल हड़ताल कर दी। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट देखिए। बुरेवाला में मुल्क भर की तरह आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की वापडा निजकारी के खिलाफ और मुलाजमीन के हकूक के लिए दफ्तर को ताले लगाकर मुकम्मल हड़ताल जारी है। वापडा मुलाजमीन की ये हड़ताल जनरल सेक्रेटरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन खुर्शीद अहमद खान की कॉल पर की गई। इस हवाला से वापडा मुलाजमीन का कहना है कि आज की हड़ताल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि फिल फॉर स्टाफ पूरा किया जाए और निजकारी को रोका जाए। मुलाजमीन का कहना है कि वापडा एक मुनाफा बख्श इदारा है और हम इसकी निजकारी हरगिज नहीं होने देंगे और अपने मुलाजमीन के हकूक के हसूल तक एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़ बुरेवाला। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। जिला घोटकी में महंगाई ने वापडा मुलाजमीन की जिंदगी दुश्वार बना दी। जिला भर में हाइड्रो यूनियन की कॉल पर सेप्को के मुलाजमीन ने तालाबंदी कर दी। बाजुओं पर सयाह पट्टियां बांधे वापडा की निजकारी और महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नई भर्तियां की जाएं, शो कॉज का खात्मा किया जाए। मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में भी वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन की जानिब से निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद अली बंगश की इस रिपोर्ट में देखिए। हाइड्रो यूनियन के सूबाई डिप्टी चेयरमैन यूनुस शाह ने कहा कि वापडा एक मुनाफा बख्श इदारा है, मौजूदा हुकूमत इसको तबाही की तरफ ले जा रही है। उन्होंने कहा कि बगैर पेंशन भर्तियों को मुस्तरद करते हैं और कहा कि पुरानी SOPs के मुताबिक भर्तियां करवाई जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा में मुलाजमीन की कमी की वजह से काम में मुश्किलात दरपेश है। हुकूमत नए एहलकारों की भर्ती में ताखीर से काम ले रही है। आज हमारा जो एहतजाज था पूरे पाकिस्तान से था और हमारा एहतजाज प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और उसके साथ साथ सियासी पॉलिसी बन रहे हैं और जो प्रेशर बने सियासी, इसके खिलाफ थे। एहतजाज के मौका पर यूनियन के अमायदीन ने कहा कि IMF के कहने पर बिजली यूनिट की रेट में इजाफे से आम आवाम पर बोझ पड़ रहा है, जिससे महकमा और आवाम दोनों का नुकसान है। एहतजाज करने वालों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया की म्यूनिसिपल कमेटी की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही, सरकारी स्कूलों के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया। जावार जफर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटिया की म्यूनिसिपल कमेटी की मुजरमाना गफलत और लापरवाही की वजह से सरकारी स्कूल के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के ढेरों से उठने वाले ताफुन से वबाई अमराज फैलने का खदशा पैदा हो गया है। म्यूनिसिपल कमेटी की चश्मपोशी से तालबा समेत शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर लगे हुए गंदगी के ढेरों ने म्यूनिसिपल कमेटी की मुजरमाना गफलत और अदम दिलचस्पी की वजह से स्कूल को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। म्यूनिसिपल कमेटी की नाकस कारकर्दगी नतीजे में सरकारी स्कूल के बाहर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिनसे उठने वाले ताफुन ने इलाका मकीनों की जिंदगी को अंजीरन बना दिया, जिसके नतीजे में स्कूल के तालबा और ग्राउंड में खेलने वाले बच्चों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया। इलाका मकीनों ने DC हाफिजाबाद मोहम्मद आसफ रजा से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि म्यूनिसिपल कमेटी को सफाई का निजाम बेहतर बनाने की हिदायत की जाए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। सराय सिद्धू शहर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह फ्लॉप होकर रह गया। गलियां सैलाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अली रजा नकवी। सराय सिद्धू शहर में सीवरेज का निजाम बुरी तरह फलाप हो चुका है, जिससे बल्दिया सराय सिद्धू की नाकामी का पोल खुल गया है। सराय सिद्धू शहर मेन मंदिर चौक से लेकर गर्ल्स कॉलेज, बॉयज हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, डाक खाना, इमाम बरगाह, कब्रिस्तान को मेन जाने वाला रास्ता गटर बंद होने की वजह से सैलाब का मंजर पेश कर रहा है। राहगीरों के साथ स्टूडेंट्स शदीद परेशानी से दो चार हैं। नमाजियों को मस्जिद में जाने के लिए शदीद परेशानी का सामना है। आए रोज गटर बंद हो जाने से गटरों का गंदा पानी गटरों से उबलने लगता है, जिससे गलियों में गंदा पानी खड़ा हो जाता है। बदबूदार और तफुन ज़्यादा गंदे पानी से वबाई अमराज फैलने का खतरा लाक हो चुका है। बल्दिया मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। सराय सिद्धू शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਵਾਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी खराबी मची हुई है। शहरियों ने कई बार बल्दिया सराय सिद्धू को सफाई सुथराई के लिए दरख्वास्तें पेश की हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल को सीवरेज के निजाम के इस्लाह अहवाल का मुतालबा करते हुए कहा कि हमें ताफुन ज्यादा बदबूदार पानी की अजियत से बचाकर फौरी तौर पर सीवरेज की निकासी को बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रजा नकवी, साइड TV, सराय सिद्धू। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आरिफ वाला के तारीखी शहर कबूला हीर रांझा की दास्तान की वजह से मशहूर है, लेकिन इस शहर में सड़कों और गलियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। नजीद अहमद खल की रिपोर्ट देखिए।
आरिफ वाला के तरीके शहर कबूला लावारिस रांझा की दास्तां की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर शहर कबूला की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गटरों का पानी सड़कों पर, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, कोई पुरसाने हाल नहीं, जगह जगह खड्डे। यहाँ के बासियों का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना है, इनते तो बीमारियां फैलदियां ने, मच्छर होंदा है तो बंदियां नूं जेड़ा ना बहुत मुश्किलात हैं। बच्चे स्कूल जाण तो बड़े मुश्किल ने, लेकिन साडे हुकूमत वाले वेखदे ही ने पे तरीखी जेड़ा ना शहर कबूला शरीफ है जिंदे विच जेड़ा ना MPMN ही हैं ते लेकिन इनदा कुछ नहीं सोचा जा रही है। आवाम का मजीद कहना है कि हुकूमत वक्त इस तरीके शहर कबूला पर नजर करम करें, इसकी गलियां और रोड बनवाएं ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। कैमरामैन फैज फरीद किच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ वाला। औस्ता मोहम्मद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले की नाअहली का पोल खुल गया। नालियों के पानी का सड़कों पर बहने लगा। कचरे के ढेर आवाम का जीना मुहाल कर दिया। रिपोर्ट करेंगे चाकर खान। मोहम्मद में सफाई की अबतर सूरत हाल और जाबजा गंदगी से अवाम परेशान होने लगे। सफाई की मद में करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अक्सर अमला काम करने के बजाय घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर और नालियों की सफाई न होने के सबब गंदा पानी रोडों पर बहने लगा, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों और नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गंदगी के बाद शहर में ताफुन फैलने लगा है। सफाई की नागफ्तबह सूरत हाल के सबब मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही है। ताहम उस्तम के अवामी हलकों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल का नोट्स लेकर सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ता मोहम्मद। कंदकोट में गंदम की फसल खराब और औसत कम होने का खदशा है। ग़ज़ाई बहरान जैसे मसाइल सर उठाने लगे। मजीद देखते हैं अब्दुल्ला की इस रिपोर्ट में। वक़्त पर ज़राई खाद न मिलने के बायस गंदम की फसल सख्त मुतासिर होने लगी है। ज़िले इंतजामिया और मुनाफाखोर डीलरों की मिली भगत के बायस गरीब काश्तकार फसलों को होने वाले नुकसान के वजह से इंतहाई ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यूरिया और दिगर खाद की किल्लत की वजह से और वक़्त पर ज़राई खाद न मिलने के बायस काश्तकारों का कहना है कि वक्त पर खाद ना मिलने की वजह से हमारा ये जो फसल है बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। ज़िले इंतज़ामिया और जो खाद के दुकानदार हैं उन लोगों की मिली भगत से हमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कंदकोट और गिरदोनवा में हजारों एकड़ पर मुश्तमिल गंदम का फसल जलकर सड़ने लगी है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज़, कंदकोट। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सरगोदा में मिलावटी दूध सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने सरगोदा में मोबाइल टेस्टिंग मशीनों से दूध का मुआयना किया। लिए गए नमूनों के नाकिस नताइज आने पर मुजरे सेहत दूध तलब किया। नाकिस दूध मज़ाफ़ाती इलाकों से सरगोदा शहर में सप्लाई किया जा रहा था। तलब किए जाने वाला दूध में पानी और केमिकल्स की मिलावट की गई थी। क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 14 दूध बरदार गाड़ियों के मालिकान को भारी जुर्माने आयद किए गए। आरिफ वाला पेट्रोलिंग पुलिस और महकमा फूड अथॉरिटी की मुश्तरका कार्रवाई। भारी मिकदार में मुजरे सेहत गोश्त पकड़ा गया। 2 मुलजिमान को धर लिया। मुलजिमान के खिलाफ थाना कबूला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुजरे सेहत गोश्त बहावल नगर से लाहौर सप्लाई किए जा रहा था। खानपुर की मशहूर सौगात रेड ब्लड माल्टा और शकरी मौसमी अपनी मिठास, लज्जत और मुनफरिद जायके के बायस पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शोहरत का हामिल है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नाइमुल्ला खान। तहसील खानपुर के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान माल्टों से लदे हुए बागात एक दिलफरेब मंजर पेश करते हैं और मुल्क भर से आने वाले सयाह माल्टों से सजी दुकानों पर खरीदारी करते हैं और उनके जायके से लुत्फानंदोज होते हैं। इन माल्टों की अकसाम में रेड ब्लड माल्टा, शकरी, मौसमी, चकोतरा और ग्रेप फ्रूट शामिल हैं, जबकि खरीदारों के लिए बागात से ताज़ा माल्टे तोड़कर खाने की सहूलत भी मुयस्सर होती है। मुल्क भर के अलावा दीगर ममालिक भी खसूसी तौर पर तोहफा भेजा जाता है। सरसों का साग हो और साथ हो मक्खन का पेड़ा तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। दिल लुभाती खुशबू और जायका सर्दियों में मुजफ्फरगढ़ की मशहूर सौगात सरसों के साग के खाने का मज़ा ही कुछ और है। मज़ीद देखते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। दिल को लुभाती खुशबू और लजीज जायका सर्दियों में मशहूर सौगात सरसों के साग का खाने में मज़ा ही कुछ और है। और सरसों के साग को पकाते वक्त 3 से 4 घंटे का वक्त दरकार होता है। सरसों के साग को हल्की हल्की आग की आंच से पकाया जाता है। सरसों का साग पक कर तैयार हो जाता है तो इसे लकड़ी के बने मंधने से लगाया जाता है, खूब रगड़ा। सरसों के साग को पकाते वक्त उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। जब
सरसों का साग हल्की हल्की आग की आंच से पककर तैयार हो जाता है तो इसे आखिर में लगाया जाता है देसी घी का तड़का। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची में जारी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का 9वां मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम में। इस मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, बताइएगा। देखिए जी, कराची के नेशनल स्टेडियम में जो पाकिस्तान सुपर लीग 7 सीजन है उसका आज 9वां मैच होगा और ये जो टाकरा होगा आज जो है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। बड़ा अहम मैच होगा ये, क्योंकि जो है आज पेशावर ज़ल्मी के जो शायकीन है काफ़ी तादाद में यहाँ कराची के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा लाहौर कलंदर के भी आपने गुज़िश्ता मैचेस में देखा है कि काफ़ी तादाद में जो है सपोर्टर्स लाहौर कलंदर के यहाँ पर आए थे। आज तवक्को है कि काफ़ी तादाद होगी नेशनल स्टेडियम के अंदर यहाँ पर। इस मैच के लिए जो है तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और जब ये टीमें जो आती हैं कराची के नेशनल स्टेडियम में तो इन्हें बड़े वीवीआईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए लाया जाता है और इसकी जो रूट्स हैं टीम का आने का और उसकी जो है फ़िज़ाई निगरानी भी की जाती है। कराची में जो है जो पहला मरहला है PSL 7 का उसमें 15 मैचेस होंगे और आज 9वां मैच होगा। बाकी अब कम ही रह गया, ज़्यादा मैचेस जो हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं और अगला मरहला फिर जो है वो लाहौर में होगा। बहरहाल जहाँ के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो PSL के इनेकाद पर इंतहाई खुश हैं। ताहम जिस तरह से 25% जो तमाशाई हैं उनको इजाज़त दी गई है, गुंजाइश के जिस नेशनल स्टेडियम में गुंजाइश है उनको इजाज़त है, तो इस पर जो है ज़रूर शायकीन मायूस हैं, लेकिन ओवरऑल PSL के इनेकाद पर इंतहाई ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। मौसम की फिर अंगड़ाई, शहर कायद में जकड़ जोर दिखाएंगे। बलाई इलाकों में होगी आज और कल बरसात, पहाड़ों पर भी रुई के गाले गिरेंगे। साहिली इलाकों के बासी और कराची हो जाएं खबरदार। तेज और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान है। तेज हवाओं की वजह से समंदर में तुकयानी भी हो सकती है। माहीगीर मोहतात रहें। गवादर जिला इंतजामिया ने माहीगीरों को जुमे तक गहरे समंदर में जाने से रोक दिया। दूसरी जानिब बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी के साथ तेज हवा और आंधी मतवक्के है। NDMA ने सूबाई और जिलाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत तमाम मुतल्लिका अदारों को किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत कर रखी हैं। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से और आपको बताएं, कोरोना ने तालीमी इदारों का रुख कर लिया। मर्दान और मंडी बाउद्दीन में कोरोना की 5वीं लहर ने पंजे गाड़ लिए। मर्दान में कोरोना के वार तेज, 5वीं लहर के दौरान वबा से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में 62 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। वबा का शिकार मरीजों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी शामिल हैं। DHO डॉक्टर कचकोल खान घर में आइसोलेट हो गए। मंडी बाउद्दीन के स्कूलों में कोरोना बेकाबू हो गया। गवर्नमेंट म्यूनिसिपल हाई स्कूल की 150 से ज़ायद तालिबात और असातिज़ा ने टेस्ट कराए। 30 से ज़ायद तालिबात और असातिज़ा के टेस्ट मुस्बत आ गए। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब ने स्कूल को 5 डोज के लिए सील कर दिया। पंजाब के दीगर अजला की तरह खानेवाल में भी डोर टू डोर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। राशिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान की ज़ेर कमान दीगर इजला की तरह खानेवाल में भी रीच एवरी डोर तीसरे मरहले का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल में मुनक्किदा तकरीब में मुहिम का इफ्तिताह किया। रीच एवरी डोर मुहिम का तीसरा मरहला 1 ता 14 फरवरी तक जारी रहेगा। तीसरे मरहले का दूसरा फेज 7 ता 20 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा सेहत की जानिब से रेड मुहिम 3 के लिए 890 टीमें तश्कील दी गई हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से 3,25,000 अफराद को पहली, 1,42,237 अफराद को दूसरी डोज लगाने का हदफ दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने हेल्थ अथॉरिटी हुकाम को 100% हदफ हासिल करने की हिदायत देते हुए कहा कि रेड मुहिम में पहली डोज का हदफ 90 और दूसरी डोज 70% तक हासिल किया जाएगा। कैमरा टीम कैमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़, खानेवाल। आलमी वायरस कोरोना से अमवात जारी हैं। मुल्क भर में मजीद 29 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6047 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.88% रही।
NCOC के जारी दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 61,190 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,51,34,775 कोरोना टेस्ट किए जा चुके। मुल्क भर में कोरोना से जान बहक अफराद की तादाद 29,330 जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 14,36,413 हो गई। कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 1,02,103 हो गई, जिनमें से 1,559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना से सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 13,04,980 हो गई। तहसील कम्प्लेक्स लिया में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहबाज हुसैन नकवी के ज़ेर सदारत रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। तहसील कम्प्लेक्स लिया में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर लिया मोहम्मद शहबाज हुसैन ने साइलिन के मसाइल सुने। इस मौका पर ADCR और असिस्टेंट कमिश्नर लिया समेत रेवेन्यू से मुतल्लिका तमाम अमला मौजूद रहा। डिप्टी कमिश्नर लिया ने साइलिन के मसाइल मौका पर हल करने के अहकाम जारी करने के साथ उनका मजीद कहना था फराइज में कोताही बरतने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़ लिया। शजरकारी मुहिम खतरे में पड़ गई। सिंध के शहर से ठारजा के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में दरख्त की कटाई सरेआम जारी है। प्रिंसिपल और हेड मास्टर की निगरानी में लाखों रुपए मालियत के दरख्त काटे जाने लगे। दरख्त की शाख गिरने से एक तलबा भी जख्मी हो गई। करोड़ लाल ईसन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। करोड़ लाल ईसन से हिजर हबीब बलोच की रिपोर्ट देखिए। आतिशबाजी के सबब कई बार नाखुशगवार वाकयात पेश आते रहते हैं। लिया पुलिस की जानिब से ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पेशगी इकदाम का सिलसिला जारी है। थाना करोड़ पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 लाख रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद करते हुए मुकदमा दर्ज करके एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से सामान आतिशबाजी में शुरली, पटाखे, अनार समेत दीगर आतिशबाजी का सामान भी बरामद हुआ। इस मौका पर SHO थाना करोड़ लाल ईसन अदनान शहजाद कुरैशी का कहना था मुलजिम ने सामान आतिशबाजी फरोख्त की नियत से रखा हुआ था, जिसकी फरोख्त कानूनन जुर्म है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान अकबर के साथ खिजर हबीब बलोच, सच TV, करोड़ लाल ईसन। मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले जहलम के 2 शोहदा जैन पहलवान और सिपाही जफर इकबाल ने अपने माँ बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। दोनों शोहदा के अहले खाना और अहले इलाका उनकी शहादत पर फख्र महसूस कर रहे हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले जेहलम के 2 नौजवान शोहदा जैन पहलवान और सिपाही जफर इकबाल जो कि अपने माँ बाप और अहले इलाका के लिए फख्र का बायस बन गए। दोनों शोहदा के अहले खाना और अहले इलाका उनकी शहादत पर फख्र महसूस कर रहे हैं। जवाब देसा और लड़सा उन्होंने और छाती काट के लड़सा उन्होंने इंशाअल्लाह अल्लाह ने हुक्म नाल उन्होंने जितनी बार आमने इतनी बार लड़सा। बिलाशुबा जेहलम के हर कब्रिस्तान में एक शहीद दफन है जो कि जिला जेहलम के लिए शुहदा की लाजवाल दास्तान है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और जेहलम जो गाजियों और शहीदों की सरजमीन है और मादरे वतन पर कुर्बान होने वाले ये सपूत अपनी कौम, वालदैन और अहले इलाका के लिए हीरो का दर्जा रखते हैं। कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वाले इन कौमी हीरोज को कौम सलूट पेश करती है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। वज़ीर आला पंजाब के टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत जिलाई सतह के मुकाबले यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में शुरू हो गए। राजा साकिब की रिपोर्ट देखिए। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी के ज़ेर एहतमाम पंजाब टैलेंट हंट मुकाबलों का आगाज कर दिया गया, जिसमें ज़िली सतह के मुकाबलों में मौसीकी, मुसव्वरी, अदब, दस्तकारी, थिएटर और लोक रक्स शामिल हैं। इन मुकाबलों में जिला भर से नौजवानों ने हिस्सा लिया और इन मुकाबलों के इनेकाद को खुशआइंद करार दिया। वो इस चीज़ में इनकरेज किया जा रहा है स्टूडेंट्स को नई फील्ड्स की तरफ आने के लिए, उनको मौका दिया जाता है कि वो दूसरों से सीखें और अपने काम को जो है वो दूसरों के सामने प्रेजेंट करवा सकें। पंजाब टैलेंट हंट के मुकाबलों में हिस्सा लेने वालों का कहना है कि नौजवानों को अपना टैलेंट दिखाने और सामने लाने के लिए हुकूमत पंजाब का ये ऐसा इक़दाम है और इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद होना चाहिए ताकि नौजवान मनफी सरगर्मियों से बचकर मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लें। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, चकवाल। कमीर शरीफ की खातून अज़्मो हिम्मत की दरख्शां मिसाल बन गई। शोहर की वफात के बाद भी हार न मानी, घर का चूल्हा जलाने के लिए बाजार में चूड़ियों का काम शुरू कर लिया। मोहम्मद अफसन सयाल की रिपोर्ट देखिए।
कमीशरी में दरबार बाबा मोहम्मद पनाह की रहायशी बेवा खातून जो अपने बच्चों को बाप की तरह पाल रही है। खातून ने शौहर की वफात के बाद हिम्मत न हारी और मशहूर तरीन दरबार बाबा मोहम्मद पनाह पर चूड़ियां बेचना शुरू कर ली। सुबह से शाम तक 200 से 400 रुपए दिहाड़ी कमा कर अपने घर का सर्कट चला रही है। बेटियां चार आप अपने करिए बाद एक मेरी बेटी मेरी बुआ से बेटी है तो मैं अपनी मेहनत करती दुआ मंगो कि अल्लाह मिले। और इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।